Student, now we start alternating current. What we mean by alternating current, alternating voltage, their average value, their mean value, expression, graph, all these things we have to study now. So what is alternating current? Earlier you have read the steady current or direct current. What is steady current or direct current? It is the current whose magnitude does not change with time. If it is I and this is time, throughout the time its value remains constant. This is called steady current or direct current. जितना भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है वो सब कौन सा था? स्टेडी करंट था, डायरेक्ट करंट था. अब हम उस डायरेक्ट करंट से आगे जा रहे हैं बच्चों. इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट लेते हैं. ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स इट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड हुज डायरेक्शन रिवर्सेज पीरियोडिकली. तो क्या हुआ ये? इट इज द करंट हुज magnitude changes periodically and whose direction reverses continuously and whose direction reverses periodically. But so this is the definition of alternating current. Means it is represented as if you will represent as I is equal to I naught sine omega t. This I is called instantaneous value. Instantaneous value of alternating current. In short, I can say it is AC, alternating current. Instantaneous value means the current at any instant t, at any time t, because its value keeps on changing continuously. It is in the form of sine wave, and this I naught is called amplitude of current or maximum value or peak value of current. This is the maximum value of the current. When sine omega t will become 1, then I will become equal to I naught. It is the maximum value or amplitude or peak value. As in case of a wave, you have read that this is the maximum value or amplitude. So this is the amplitude of alternating current. And what about omega? Omega is angular frequency. Angular frequency, and we know that omega is equal to either 2 pi nu or 2 pi by t, where nu is frequency and t is time period. T is time period. So this is the definition of alternating current, whose magnitude changes continuously and whose direction reverses or changes periodically, and its mathematical expression will be given by I is equal to I naught sine omega t. This equation will represent alternating current, in which I is called instantaneous value of alternating current. This is called peak value, maximum value or amplitude of alternating current. This is called angular frequency. Omega is equal to 2 pi nu or 2 pi by t. T is the time period and nu is the frequency of alternating current. How can you represent it graphically? Graphically, it may be represented as like this. This is I, and this value is peak value I naught. This is also peak value minus I naught, but in opposite direction. This is a t by 2 and this is time t. This is a positive half cycle. Positive half cycle. And this one is a negative half cycle. Negative half cycle. Okay. And if you talk about the phase, this is called pi and this is called 2 pi. Phase difference from O point to this point, suppose O, A, this point is B, this point is C and this point is D. So one complete cycle is O to A. For the magnitude of alternating current increases from O to A, it becomes maximum at point A, I naught. Then it starts decreasing to point B, and then again it is called half cycle, positive half cycle, and the time of the positive half cycle is equal to t by 2 if t is the time for one complete cycle, and here phase change will be pi, and now it reaches to point B, C, maximum on other side,
and then again decreases and becomes 0. So in one cycle AC, the value of AC becomes 0 at this point as well as at this point. For next cycle which starts from here 0, it is again here 0. When next cycle starts here 0 and here it is again 0. And in India we have a AC of frequency 50 cycle per second or 50 hertz. So in India we have the AC alternating current for 50 cycle per second. जितनी भी AC है, ट्यूबलाइट की AC है, फैन चलता है, AC चलता है, ये सब कौन से वाली है? AC है बच्चों, घर में जो आता है। जितनी आप ट्रांसफार्मर से यूज कर रहे हैं वो सब कैसी है? AC है। और जो आपके इन्वर्टर में जो बैटरी रखी है, जिसको बैटरी प्रोवाइड करता है, जिसमें टॉर्च सेल में सेल प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका वॉल क्लॉक में सेल प्रोवाइड करता है, वो सब कौन से वाला है? DC होता है बच्चों। तो ये AC वैल्यू है वो DC है। अब आगे बताएंगे AC DC का कंपेरिजन भी करेंगे, सारी चीजें। DC ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अब हम AC को डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है। देखिए एम्पलीट्यूड सब जगह कैसा बना रहेगा? सेम बना रहेगा। तो इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, यानी कि ये वेव की तरह, पीरियड की तरह से बनेगा, इसीलिए इसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो पहले इंक्रीज होना मैक्सिमम, फिर 0, बट मैक्सिमम ऑन अदर साइड एंड इट विल बिकम 0 एंड करंट बिकम्स 0 ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल में 2 बार करंट का 0 होना। इन इंडिया वी हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 साइकिल पर सेकेंड, इट मीन्स 1 सेकेंड कंसिस्ट ऑफ 50 साइकिल्स, such kind of 50 cycles. This is called one cycle. These are 2 cycles, then 3 cycles, then 4, 5, 6, and this AC has 50 cycles per second, means in 1 second the current becomes maximum twice, means 100 times, and the current becomes 0 110 times. एक सेकंड में 50 साइकिल्स है और एक साइकिल में 2 बार करंट मैक्सिमम होता है और 2 बार करंट 0 होता है। तो यानी कि एक सेकंड में कितनी बार 0 होगा? एक सेकंड में 100 टाइम्स 0 होगा और 100 टाइम्स मैक्सिमम होगा। ओके, तो यानी कि हर 1/100 सेकंड के बाद आपको 0 करंट मिलेगा। ये 0 मिलेगा 1/100 सेकंड के बाद, इसके फिर बाद 1/100 सेकंड के बाद फिर 0 हो जाएगा, 1/100 ऑफ सेकंड के बाद फिर इतना हो जाएगा। तो 1/100 ऑफ अ सेकंड के बाद करंट 0 होता रहेगा या मैक्सिमम होता रहेगा। समटाइम जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो इलेक्ट्रिक शॉक में कौन कौन से सेफ पॉइंट्स हैं बच्चों? ये वाले सेफ पॉइंट्स माने जाते हैं। और ये एक सेकंड में कितने चांस मिलेंगे? 100 चांस मिलेंगे, बिकॉज इट बिकम्स 0 100 टाइम्स इन 1 सेकंड। ओके, अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अमेरिका में 20 साइकिल पर सेकंड है। इंडिया की जितनी फ्रीक्वेंसी है एसी जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं वो 50 साइकिल पर सेकंड पर है। जब बताएंगे, जब आपको एसी जनरेटर डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे डिटेल में क्या होता है। फिलहाल हम इसको मैथमेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीख गए बच्चों। अच्छा, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होगा इस तरह से। क्या केवल यही ऑल्टरनेटिंग करंट है? नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है। इट इज द साइन वेव व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। क्यों? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर मेथड भी लिख सकते हैं। नाउ AC कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज I = I0 cos ओमेगा t। दिस इज आल्सो AC। ये भी आप AC ही कहेंगे, ये भी AC होगा। द डिफरेंस इज दिस इज अगेन पीक वैल्यू, दिस इज अगेन इंस्टेंटेनियस वैल्यू। Omega is again frequency, angular frequency 2 nu 2π/t, but the difference is its graph will start from not 0 but from maximum value. This is maximum value. Here it is time and it is I, and this is I0. When time t is equal to 0, when cos 0 is equal to 1, then I is equal to I0. So here the graph will start from the maximum value. But in case of sine, when t is equal to 0 at this point, then sine 0 is equal to 0, then I becomes 0. So this equation shows that the current starts from 0 and then it travels in the form of a wave. Here in case of I is equal to I0 cos omega t, it starts from maximum value and then it travels in the form of a wave. Here again same है with the maximum value. फिर again all these conditions will be same. कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक का, कितना टाइम होगा, एक पॉजिटिव आप साइकिल कहाँ से कहाँ पर लोगे, यहाँ से यहाँ तक एक पॉजिटिव आप साइकिल हो जाएगी। ये इसमें पॉजिटिव का पार्ट है, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव का पार्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे कंटिन्यूअसली द वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। सो दिस इज ऑल्सो द AC, दिस इज ऑल्सो द AC, बट फॉर द sake of convenience, for the derivations of its value, generally we prefer this equation. Why we prefer over that? Sometimes it will be preferred, कहीं कहीं हम इसको भी यूज करेंगे। ये इसलिए प्रीफर करते हैं कि जिसमें टाइम इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू कैसी है? 0 है, और आगे शेप कैसी है? सेम है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि दोनों में फेज डिफरेंस है। जब इसमें 0 है वैल्यू तो इसमें कितनी है? मैक्सिमम है। ठीक है,
तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर करंट 0 है, टाइम इज इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम फेज डिफरेंस भी कह सकते हैं, टाइम का डिफरेंस भी कह सकते हैं, π/2 का फेज डिफरेंस कहेंगे। जरा फेज डिफरेंस समझिए बच्चों क्या होता है। फेज डिफरेंस मीन चेंज इन द डायरेक्शन। जब आप इस पॉइंट पर लेते हैं तो डायरेक्शन किधर है बच्चों, अपवर्ड है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे। जब इस वाले पॉइंट पे लोगे तो टेंजेंट किधर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी डायरेक्शन। अब बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना चेंज हो गया, π/2, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, π/2। तो ये कहेंगे π/2 फेज चेंज। फिर π/2 यहाँ से घूम के नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। तो अगर एक साइकिल की बात करें, अगर हम एक साइकिल को एक्सप्लेन करें चिल्ड्रन, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टाइम है t/4 और फेज डिफरेंस कितना है, π/2, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा पाई और टाइम कितना हो जाएगा, t/2। और जब आप यहाँ की बात करेंगे तो टाइम हो जाएगा 3t/4 और ये आ जाएगा आपका यहाँ तक कितना है, 2π, और यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये टाइम t/2 और ये टाइम टोटल कितना हो गया, t हो गया। यहाँ तक फेज डिफरेंस पाई और यहाँ से यहाँ तक फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2π हो गया। तो देखिए, और यहाँ तक π/2 हो गया और ये पाई है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 3π/2 आ जाएगा। पाई प्लस π/2, पाई तो यहाँ तक हो गया और π/2 फिर यहाँ तक चेंज हो गया, 3π/2 हो गया, और आगे यहाँ पर कितना हो गया, 2π हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्रॉम 0 to π, नेगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम π to 2π, ठीक है। दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल टाइम इज t/2, दिस टाइम इज t/2 plus t/2, then total time will become t. This is called time period, टाइम पीरियड कहेंगे। तो फेज तो बताता है किसको, डायरेक्शन चेंज होने को, टाइम बताता है कितने टाइम में चेंज हुई। जब यहाँ π/2 का फेज डिफरेंस है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट हैव फेज डिफरेंस π/2, मीन डिफरेंस इन द डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, यहाँ डायरेक्शन किधर होगी, हॉरिजॉन्टल। बताना दोनों की डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, π/2 का हुआ कि नहीं। मींस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बोथ आर एट फेज डिफरेंस π/2 और 1/4 ऑफ द साइकिल। तो जब साइकिल की बात करेंगे तो 1/4 ऑफ द साइकिल, टाइम की बात करेंगे तो t/4, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, और फेज की बात करेंगे देन इट विल बी π/2। यहां से यहां तक बात करते हैं, ऐसे ही आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसे आगे एक्सटेंड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वे हाउ द दिस AC इज defined and how it is represented mathematically in the form of equation and how it is represented graphically भी इसको किसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर हम इसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिफाइन करना चाहें, अगर हम करंट के बजाय किसको डिफाइन कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इट इज द वैल्यू ऑफ, करंट की जगह क्या आ जाएगा, वोल्टेज, whose magnitude changes continuously and whose direction reverses periodically, and this is represented by E. Instead of I, you will have E is equal to E0 sin omega t. This is instantaneous value of alternating voltage. Sometimes we say alternating current voltage, एक ही बात होता है बच्चों, तो हम इसको alternating voltage कह रहे हैं। And this E0 is the amplitude of not current, this is alternating voltage, ठीक। एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू, ओमेगा इज सेम, टाइम इज सेम, ग्राफ इज सेम, एक्सेप्ट ई आई विल बी रिप्लेस्ड बाय ई। आई को किससे रिप्लेस कर दोगे, ई से रिप्लेस कर दोगे। देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू E0 sin omega t, ऑल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू I0 sin omega t। अगेन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ cos, ऑल्टरनेटिंग करंट I0 cos omega t, and alternating voltage or EMF sometimes we can say E is equal to E0 sin omega cos omega t, and this time it will become E and this will become E0, right? And this will be also E0 0, and this is again this is 1 t/4, this time is t/4 1/4, and t/4 corresponds to π/2 phase difference. So this is π/2 again plus π/2 and π/2 plus π/2 कितना हो जाएगा बच्चों, पाई, and then it will become 2π यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें देखिए एक फेज ये आएगा, एक फेज ये आएगा, एक फेज ये आएगा। तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यहाँ तक फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π, और इसका हाफ कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, π/2, और ये पॉइंट कितना होगा, 3π/2। इस तरह से लोगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लेंगे वो कितना टाइम लोगे, t लोगे, टोटल टाइम t हो जाएगा। सो दिस इज ए वे टू रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अभी तक तो बच्चों हमने रिप्रेजेंट करना सीखा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसके बारे में टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इसमें क्या करते हैं, देखिए जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जब नंबर ऑफ साइकिल्स पर आ जाते हैं, देन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ओमेगा, वही रिलेशन बन जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, लाइक दैट. So this is the definition of alternating current and alternating voltage. When you are defining the voltage, then you have to write over here, it is the voltage, ठीक है, whose magnitude changes continuously and whose direction reverses or changes periodically. Mathematically it is represented like this, graphically it is represented like this. We can represent like this also in the equation and like this in the form of graph also. चलिए इतनी बात हमें समझ आ गई बच्चों. Now question is, what is the value of this alternating current? How can we find its value? Value कैसे निकालें इसकी? अब बच्चों वैल्यू तो इसकी है, ऐसे मान के चलिए एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम बताते हैं आपको. सपोज वी ट्रेवल अ डिस्टेंस विद द वेरिएबल स्पीड. जनरली अगर कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर तक आप जाते हो तो आपकी स्पीड कांस्टेंट तो होती नहीं है, वेरिएबल होती है, जगह जगह आपकी अलग अलग होती है. जहाँ भीड़ होती है वहाँ स्पीड कम हो जाती है गाड़ी की, जहाँ थोड़ा खुला रोड मिल जाता है स्पीड बढ़ जाती है. तो यानी कि वेरिएबल स्पीड है. तो हम उसका एक तरीका बताते हैं, हम क्या बताते हैं भाई, एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड विद विच द बॉडी ट्रेवल्स द एंटायर डिस्टेंस इन द गिवन टाइम. ठीक है, तो वो एवरेज स्पीड निकालते हैं. इसमें कितनी वैल्यू है, बिकॉज इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली एट एवरी टाइम, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफरेंट. और तो हाउ कैन वी फाइंड इट्स वैल्यू? सो वी ट्राई टू फाइंड द एवरेज वैल्यू. सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कितनी एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के लिए आएगी वो हम फाइंड करते हैं. अच्छा, इसको भी हम देखिए दो ऑप्शन है, या तो हाफ साइकिल के लिए ले सकते हैं या वन साइकिल के लिए ले सकते हैं. वन साइकिल हमने बता दिया कौन सा टाइम है, 0 to t तक का, और फेज कितना है, 0 to 2 पाई तक का. अगर फेज की बात करोगे तो आप कहोगे 0 to 2 पाई. अगर टाइम की बात करेंगे तो 0 to t कहेंगे. और अगर साइकिल की बात करेंगे तो कैसा करेंगे, वन साइकिल. कौन सा वाला साइकिल हो गया, ये वाला साइकिल जो अभी हमने बताया था, यहां से यहां तक. हम ये लेना चाहते हैं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कितनी एवरेज वैल्यू है इस एसी की, वो हम फाइंड करना चाहते हैं. तो यहां से यहां तक का टाइम t है, और ऑब्वियसली t किसके इक्वल है, 2 पाई बाई ओमेगा के इक्वल है. तो देखिए बच्चों, पहले इसको डिफाइन कैसे करें, हाउ टू डिफाइन इट. अच्छा, करंट का काम क्या होता है, करंट, व्हाट इज करंट, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो देखिए हम पहले इसको लिखते हैं फिर समझाते हैं क्या होता है. इट इज दैट स्टडी वैल्यू ऑफ करंट which flows same amount of charge in a resistor in the time of one cycle. और वन साइकिल का टाइम क्या है, 0 to t, that is one time period. In the time of one cycle, as that by AC in the resistor in that time. Now try to understand. जरा इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. देखिए क्या होता है, सपोज देयर इज ए रजिस्टर, और इसमें से हम एक डीसी फ्लो कराते हैं और एक बार इसमें से क्या फ्लो कराते हैं, एसी फ्लो कराते हैं. कितने टाइम के लिए, 0 से t टाइम के लिए. तो जितना चार्ज इस डीसी से फ्लो होता है इन द टाइम ऑफ वन साइकिल, इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द एसी, देन दिस डीसी कैन बी कंसिडर्ड एज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी. तो एसी की एवरेज वैल्यू क्या हुई कि कोई भी रजिस्टर है, ये कोई मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें से 0 to टाइम, गिवन टाइम के लिए, एक साइकिल के टाइम के लिए आप एसी पास कराओ और उतने ही टाइम के लिए डीसी पास कराओ. अगर दोनों से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट डीसी, बिकॉज डीसी इज कांस्टेंट, तो दैट डीसी इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी. सो दिस इज अ वे टू डिफाइन द एवरेज वैल्यू. जैसे आप बताते हैं, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जर्नी ट्रेवल करते हैं, या आप किसी भी व्हीकल से ट्रेवल करके गए, स्पीड कैसी थी, वेरिएबल थी. एवरेज क्या कहा आपने कि यहां से यहां तक जाने में जितना आपको अलग अलग स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से टाइम लगा, अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चले और यहां से यहां तक पहुंचने में सेम टाइम लगे, तो वो जो कांस्टेंट स्पीड है दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल. वो इस व्हीकल की क्या मानी जाएगी, एवरेज स्पीड मानी जाएगी बच्चों. तो यहां भी हम एवरेज की वही टेक्निक हमने अप्लाई की है. कोई रजिस्टर लिया, उसमें से डीसी पास कराया, ठीक है, उसमें से एसी पास कराया. अगर गिवन टाइम में, एक साइकिल के टाइम में दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग सेम है, देन दैट डीसी, बिकॉज डीसी इज कांस्टेंट,
then DC can be considered as the average value of that AC. बोलो बात समझ आई कि नहीं? मैकेनिक्स से एग्जांपल रिजेंबल कर गया कि नहीं? चलिए, तो बच्चों ये डिफाइन आपने किया, बट हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड करें इसे हम किसी भी गिवन रजिस्टर से? तो हम क्या एज्यूम करते हैं यहाँ पर? वी एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करते हैं बच्चों? लेट एक चीज यहां एज्यूम कर लेते हैं, कोई रजिस्टर मान लेते हैं और इस रजिस्टर में हम क्या मान लेते हैं? लेट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला एक्सप्रेशन लेके चलते हैं बच्चों, ठीक है ना? इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, आई की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये वैल्यू तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और कहां से? जीरो से कहां तक चेंज होती है? आई नॉट तक, और फिर जीरो से कहां तक बताया हमने चेंज होना? आई नॉट, फिर आई नॉट से कितना होगा? जीरो, फिर जीरो से कितना होगा? माइनस आई नॉट, मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद द मैक्सिमम वैल्यू। सो हाउ टू फाइंड द एवरेज फ्रॉम जीरो टू टी? लेट और नाउ द small amount of charge flowing in a register in time dt टाइम में, किसी भी रजिस्टर में कितना चार्ज फ्लो करेगा? दैट इज dq इज इक्वल टू आई dt। बोलो ये बात आपने पढ़ी है कि नहीं? I क्या होता है? dq by dt। अच्छा, अब देखिए dt is such a small time for which this current I can be taken as constant। ये फॉर्मूला आपने डीसी का लगाया, इसी का फॉर्मूला नहीं था, ये फॉर्मूला डीसी का अप्लाई किया। क्यों अप्लाई कर सकते हैं डीसी का? देखिए dt क्या है? वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, dq क्या है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। सो dt इज सच ए स्मॉल टाइम फॉर व्हिच i कैन बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। इतने टाइम के लिए i को क्या मान सकते हो? कांस्टेंट मान सकते हो। तो हमने i dt इसको लिख दिया dq चार्ज। i की वैल्यू बताना बच्चों, यहां से कितना हो गया? i नॉट sin ओमेगा t dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। This is dq. It is a small amount of charge flowing in time dt। लेकिन हमें तो कितने टाइम में निकालना है? In the time of one cycle. So the total charge flowing in time, कौन से वाला? 0 to t। 0 to t क्यों लिया? In the time of one cycle, एक साइकिल का टाइम इतना होता है। बताओ ऐसे के लिए क्या टेक्निक है? ऑब्वियसली हमारे पास एक ही टेक्निक है, इंटीग्रेट करना। कहां से करना? 0 to t करना। कितना हो गया? आई नॉट, कितनी वैल्यू बनेगी? साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आई नॉट साइन ओमेगा टी का बच्चों होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा एंड 0 to t, ठीक है? ये फॉर्मूला। और टी की जगह हम 2 पाई बाई ओमेगा भी लिख सकते हैं। कैन वी राइट 2 पाई बाई ओमेगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। जिन बच्चों को नहीं आता है वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन के थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस के थीटा अपॉन के। ये फॉर्मूला होता है साइन के इंटीग्रेशन का, ठीक है? मैथमेटिक्स से। चलिए, और टी को क्या लिख दिया आपने? 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और यहां से कितना आएगा बच्चों? कॉस ओमेगा। टी की जगह अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। व्हाट इज कॉस 2 पाई? कॉस 2 पाई 1, एंड व्हाट इज कॉस 0? 1, दैट इज इक्वल टू 0। It means the total charge flowing in the time 0 to t will be 0। और अगर ये चार्ज 0 है तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं आप? हमने वही तो कहा था कि कौन से वाला डीसी है। अगर एसी फ्लो करता है तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 0 है। और अगर डीसी फ्लो करता है इतने टाइम के लिए फॉर डीसी, अगर हमने माना कि ये एसी उस डीसी के इक्वल है, तो बताइए अगर हम डीसी को कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें कांस्टेंट को? आई एवरेज मान लें। कितने टाइम के लिए फ्लो किया? टी टाइम के लिए। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू आई एवरेज इनटू टी। ये एवरेज वैल्यू है। अगर डीसी होता तो हम इतना चार्ज कहते कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा? Q इज इक्वल टू आई इनटू टी करेगा, वेयर आई द कांस्टेंट करंट एंड दिस कांस्टेंट करंट इज, कौन से वाला करंट है बच्चों? दैट इज एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू का करंट। इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। बट ये चार्ज तो दोनों का कैसा है? सेम है बाय डेफिनेशन। वी सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल है। यानी कि अगर यहाँ चार्ज 0 है तो चार्ज की वैल्यू 0 रख देना बच्चों। कितना आएगा? आई एवरेज इनटू टी, और आई एवरेज विल बिकम 0। इट मींस देयर इज नो करंट फ्लो इन दिस सर्किट, इन दिस रजिस्टर। इसके अकॉर्डिंग तो एवरेज वैल्यू कैसी आई? 0 है। By this formula, the current flowing through the register in a given time, in the time of one cycle, this is the instantaneous value, and now the average value will become 0.
अब बच्चों एवरेज वैल्यू यहाँ तो जीरो आ गई, मैकेनिक्स में तो ऐसा था नहीं, जब आपने कार की स्पीड निकाली थी वहां जीरो नहीं आया था। अब जीरो किस लिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जीरो इसलिए आ रहा है कि जो ऑसिलेट कर रहा है चार्ज, एक बार एक डायरेक्शन में जा रहा है, फिर दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे जा रहा है, ये मान के चलिए। तो इस तरह से जो एवरेज चार्ज आएगा गिवन टाइम में, दैट विल बी जीरो, सो दैट एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल विल बी जीरो। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज ए वे टू डेराइव इट्स वैल्यू। तो हमने दो मेथड से निकाला, अगर हम डीसी होता तो ये एवरेज वैल्यू जिसको हमने कहा ये रिजल्ट आता, एसी है तो टोटल चार्ज इतना आया, एवरेज हमने निकाल लिया चार्ज का, और ये चार्ज की वैल्यू यहां रखी तो आई एवरेज कितना आ गया, जीरो आ गया बच्चों। अच्छा ठीक है, ओके। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी बताते हैं हम आपको। क्या ऑल्टरनेट मेथड है? ऑल्टरनेट मेथड एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला दे रहे हैं बच्चों, शॉर्ट मेथड बताते हैं। ये तो हो गया बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेरिवेशन हो गया। हम ऑल्टरनेट मेथड क्या बताते हैं कि हम एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला बताते हैं। किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन में एवरेज कैसे लेते हैं, जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन में और डिस्क्रीट फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जैसे बच्चों की हाइट होती है, अलग अलग हाइट होती है, सबकी इंडिपेंडेंट हाइट्स लेके और उनका एवरेज ले लें तो वो तो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। टोटल हाइट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज निकालते हैं। इसमें कैसे लेंगे? इसमें तो सब जगह अलग अलग वैल्यू है, यहाँ हाइट अलग है, हाइट अलग है, यहाँ हाइट है, सब जगह अलग अलग वैल्यू है। अब कितना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? इसमें क्या टेक्निक है? एवरेज की टेक्निक है। तो ऐसे एवरेज फंक्शन के लिए इंटीग्रल एक्स डी टी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बच्चों। एक्स कोई भी वेरिएबल फंक्शन है, इट मे बी करंट, इट मे बी वोल्टेज, इट मे बी ईएमएफ, ठीक है। एक्स डी टी डिवाइडेड बाई डी टी फ्रॉम T1 टू T2, जिस टाइम इंटरवल पर भी आप लेना चाहते हैं उसकी आप लिमिट रख दीजिए। अच्छा मान लीजिए आपको करंट का एवरेज लेना है, चलो इसको ये अप्लाई करके बताते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है आई का, यहाँ तक तो इक्वेशन सेम होगी, यहाँ से आगे का रास्ता चेंज होता है। इसके बाद में आप ये वाला स्टेप शुरू कर सकते हैं, इसके बाद का स्टेप बता रहे हैं। अगर ये मेथड आपको अडॉप्ट करना हो तो क्या बताएंगे? आई एवरेज, आई एवरेज का फॉर्मूला बताओ क्या होना चाहिए? आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी। ओके, आई की वैल्यू रखना बच्चों, और कहां से? एक साइकिल है तो 0 टू टी, एक साइकिल है तो कितना हो गया? 0 टू टी। बताओ आई डी टी के लिए कितना हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू, और टी की वैल्यू कितनी रख दिया आपने? 2 पाई बाई ओमेगा, जैसे यहां रखा था आपने, इस वाले में रखा था, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। चलिए फर्दर सॉल्व कर लीजिए, आई नॉट कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी, ये अभी निकाला आपने, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। डिनोमिनेटर में टी है, टी का कितना आएगा? 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, और ऊपर जाके कितना हो जाएगा? दैट विल बी, चलिए डिवाइड करके बता देते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। एक स्टेप और बढ़ा देते, इसको सॉल्व करो, चलिए सॉल्व करें। माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ओके। और ये ऊपर जाके हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई, और कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा तो बाहर निकल गए, कॉस ओमेगा टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 0, एंड अगेन इट विल बी 0। cos 2 pi 1, 1 minus 1 0, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, इट विल बी 0। सो अगेन ये मेथड भी बता रहा है कि एवरेज वैल्यू कितनी है? 0 है। अगर ये वाला फंक्शन है करंट का, एक साइकिल के लिए निकालना चाहते हो एवरेज वैल्यू, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन साइकिल विल बिकम 0। एक साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग वैल्यू कैसी हो जाती है? 0 हो जाती है। बताइए इतनी बात समझ आई कि नहीं बच्चों? तो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन कैसे करें, मैथमेटिकली कैसे उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें, कैसे उसका हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ में हम कैसे समझें कि कहाँ जीरो, कहाँ मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू है। फिर हमने देखा कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो सकती है। तो बच्चों एवरेज वैल्यू वाली टेक्निक यहाँ सक्सेसफुल नहीं है। अगर एवरेज वैल्यू की टेक्निक लेते हैं, जैसे मैकेनिक्स में किसी व्हीकल के लिए लेकर के एवरेज वैल्यू मान लेते हैं, एवरेज वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कहेंगे द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं? और ये छोटा मेथड हमने बता दिया, ये तो किसी पर भी अप्लाई कर दीजिए एवरेज लेने के लिए। जब भी आपको करंट का निकालना, वोल्टेज निकालना है, पावर निकालना, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसी का भी एवरेज निकालना, ये फॉर्मूला लर्न कीजिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। बहुत डायरेक्ट कम टाइम में अगर आपको किसी डेरिवेशन को करना है, किसी न्यूमेरिकल को करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट टेक्निक होगी, और नहीं तो जो जनरल मेथड है वो जनरल मेथड हमने सिखाई दिया है पर द डेफिनेशन। अच्छा ये तो हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। अगर हमें यही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए डिफाइन करना हो, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें, और वोल्टेज को हमने क्या कहा? ईएमएफ भी कहा,
और किसके लिए? फॉर वन साइकिल। कितने टाइम के लिए? 0 to 2 के लिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा? इट इज द स्टेडी वैल्यू ऑफ विच, कौन सा वैल्यू बच्चों? वोल्टेज और ईएमएफ विच फ्लोज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, और विच सेंड्स भी कह सकते हैं, विच सेंड्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ रजिस्टर, किसी गिवन रजिस्टर में, इन द टाइम ऑफ वन साइकिल एज दैट बाई विच alternating voltage in that register in that time, सेम रजिस्टर में। अब करंट का काम भी चार्ज ले जाने का, कैरी करने का, और पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज क्या है, का काम क्या है? चार्ज को भेजना। तो यहां अगर ईएमएफ की बात है तो यहां आप ईएमएफ ले लीजिए, ये आप ईएमएफ या वोल्टेज कर दीजिए, और ये इक्वेशन बदलती चली जाएगी। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट। अब चार्ज का फॉर्मूला तो यही होता है, चार्ज फ्लोइंग इन टाइम टी। अब यहाँ आई कितना होगा? रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? आर है। तो बच्चों यहाँ आई को आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? आई इज इक्वल टू ई बाई आर, और इसको हम लिखेंगे दैट इज ई अपॉन आर डी टी, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ये चार्ज निकल जाएगा। तो आई की को किस में कन्वर्ट करेंगे? वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, ई में। यहाँ ई बाई आर। चार्ज कितना आ जाएगा? यहाँ पर टोटल चार्ज इंटीग्रेट कर दो, इसकी जगह क्या हो जाएगा? ई नॉट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा? अपॉन आर भी आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई आर। यहाँ कितना आएगा? आर। ये भी कितना आ जाएगा? आर, और सब मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 0। और डीसी के लिए क्या ले रहे हैं? डीसी का मतलब ये हो गया जिसमें आपका वोल्टेज कौन सा ले रहे हैं? ई एवरेज। डीसी वोल्टेज जो डायरेक्ट वोल्टेज लेते हैं या स्टडी वोल्टेज लेते हैं, फॉर स्टडी वोल्टेज भी लिख सकते हैं, स्टडी वोल्टेज, स्टडी ईएमएफ। तो कितना आएगा? ई एवरेज इंटू टी, और इससे कितना आ जाएगा? ई एवरेज इंटू टी, और ई एवरेज की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0 आ गई। और आई भी क्यों ना 0 है, तो वही इक्वेशन तो सेम है उतनी। आई की जगह आप सब जगह ई लिखते चले जाइए, ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह ऑल्टरनेट वोल्टेज बोल दीजिए, तो आपके पास किसकी एवरेज वैल्यू निकल जाएगी? ऑल्टरनेट वोल्टेज की वैल्यू निकल जाएगी, ऑल्टरनेट वोल्टेज ईएमएफ की वैल्यू निकल जाएगी। It means that for one complete cycle, the value of average value of alternating current is 0, and average value of alternating EMF is also 0. और एक साइकिल के लिए 0 है तो अगले एक साइकिल के लिए भी 0 होगा, अगले नेक्स्ट साइकिल के लिए भी 0 होगा। इसका मतलब एवरेज वाली टेक्निक के अकॉर्डिंग तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी 0 है, ऑल्टरनेटिंग करंट भी, क्या एवरेज वैल्यू भी कैसी है? 0 है फॉर वन कंप्लीट साइकिल। और इस मेथड से भी निकाल सकते थे आप। ऑल्टरनेट मेथड से कैसे निकालोगे? रख दीजिए एक्स की जगह ई रख दीजिए आप, ई एवरेज, ये लो ई रख दिया आपने, यहाँ आपने ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गए, यहाँ आई था उसकी जगह ई नॉट आ गया है, ठीक है, उसकी जगह ई नॉट जहाँ था, यहाँ हमने आई नॉट की जगह कितना कर दिया? ई नॉट कर दिया है, ये अगेन 0 हो गया। बोलो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, जहां आई लिखा था उसकी जगह क्या कर दिया आपने? ई कर दिया है। तो ये वैल्यू किसके लिए होगी? इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल. So whether it is charge, it is alternating current, or it is alternating voltage, the value of average for alternating current or alternating voltage for one complete cycle will become 0. ठीक है, तो यहाँ एवरेज की वैल्यू से काम नहीं चलेगा. मैकेनिक्स में आप किसी कार की, किसी व्हीकल की एवरेज स्पीड लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे. यहाँ एवरेज की स्पीड और एवरेज की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 0 आई. एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. एक ये काफी हमने इसमें कवर कर दिया बच्चों. इसमें पूरा एसी को डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और साइमल्टेनियसली हमने दोनों चीजें की. एक तरफ करंट और दूसरी तरफ वोल्टेज, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों में सिमिलरिटी है. यहाँ आई वाली टर्म्स है और यहाँ कौन से वाली है? ई वाली टर्म्स है. तो जिसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं, और कई बार तो हम उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, एसी वोल्टेज. एसी वोल्टेज का मतलब क्या होगा? किसमें? जो ऑल्टरनेटिंग की तरह से आप यूज कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. और दोनों मेथड से बता दिया हमने, एक एवरेज वाला मेथड, एक डेफिनेशन वाला मेथड होगा बच्चों. ठीक है, चलिए यहाँ तक का पूरा कर लेना. नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर. हम अगले लेक्चर में इसको हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे.